presence of God this day. और हम आनंदित हैं कि आज हम परमेश्वर के सम्मुख में उपस्थित हैं। And first, to bless Israel, we will read from the book of Numbers, chapter 24, verses 8 and 9. Numbers 24, 8 and 9. गिनती उसका 24, 8 और 9 पहला हम पढ़ेंगे कि हम इस्राएल देश को आशीष दें। It says like this: God brings him means Israel, brings him out of Egypt. He has strength like a wild ox. He shall consume the nations, his enemies. He shall break their bones and pierce them with his arrows. He bows down, he lies down as a lion, and as a lion, who shall rouse him? Blessed is he who blesses you, and cursed is he who curses you. उसको मिस्र में से परमेश्वर ही निकालना लाए रहा है। वह तो पैदल सांड के समान बल रखता है। जाति जाति के लोग जो उसकी दोही हैं, उनको वह खा जाएगा और उनकी हड्डियों को टुकड़े टुकड़े करेगा और अपने तीरों में उनको भेदेगा। वह दबक बैठा है, वह सिंह या सिंही के समान लेट गया है। अब उसको कौन छेड़े? जो कोई तुझे आशीर्वाद दे वह आशीष पाए, और जो कोई तुझे शाप दे वह शापित हो। Yes, so let us bless Israel so that we will also be blessed. और हो कि हम इज़राइल को आशीष दें ताकि हम भी आशीष प्राप्त करें। And today is the 7th of July. और आज जो है 7 जुलाई का दिन है। So 7th month. और 7वां महीना है। So today I want to share with you some of the things that happen in the 7th month in the scriptures. और आज जो मैं वचन बांटना चाहता हूँ वो 7वें महीने के अंदर में वचन में पाई जाने वाली सारी घटनाओं के बारे में होगा। I may not be able to explain every point, but there are 7 points which starts with R in English. और देखिए मैं सारी बातों को विवरण तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो बातें मैं आज बांटने जा रहा हूँ वो सारी बातें जो हैं अंग्रेजी के आर शब्द से शुरू होती है। Today we have the Lord's table, so we will see how much we will be able to hear. और आज हम प्रभु की भोज की मेज में सम्मिलित होंगे, इसलिए हम देखेंगे कितना आगे हम बढ़ सकते हैं। The first thing is we read from the book of Genesis chapter 8, but we will just read the verse 4. और देखिए हमने उत्पत्ति 8 अध्याय और में से पढ़ा है, लेकिन हम चौथा वचन ही उसका पढ़ेंगे। It says like this: on the 17th day of the 7th month, the ark came to rest on the mountains of Ararat. और 7वें महीने के 17वें दिन को जहाज अरारत नामक पहाड़ पर टिक गया। And maybe we will read a couple of more verses which speaks about 7th month. Let's read Nehemiah chapter 7 and verse 73. और हो कि हम कुछ और वचनों को पढ़ेंगे जो 7 के बारे में बात करता है। तो नehemiah 7 अध्याय उसका 17वां वचन हम पढ़ेंगे। 73. और 73 हम पढ़ेंगे। And I'm going to read from the NIV version. I usually use the NKJV, but in this verse I'm going to use NIV. It says, the priests, the Levites, the gatekeepers, the musicians, and the temple servants, along with certain of the people and the rest of the Israelites, settled in their own towns when the 7th month came, and the Israelites had settled in their towns. और इस प्रकार याजक, लेवी, द्वारपाल, गवैये, प्रजा के कुछ लोग और नातीन और सब इजरायली अपने अपने नगर में बस गए। And even the similar verse we read from the book of Ezra chapter 3 and verse 1 also. और देखिए वही जो ऐसा ही वचन जो है हम एजरा उसके 3रे अध्याय उसके पहले वचन से हम पढ़ते हैं। So first verse, the first R is God is going to give us rest during this month of July. और जो पहला शब्द है जो शुरू हो रहा है, परमेश्वर इस जुलाई माह में हम सबको आराम प्रदान करेगा। He read that the ark came and rested on the 17th day of the 7th month in the mount of Ararat. और अभी हमने पढ़ा था कि 7वें महीने के 17वें दिन में अरारत नामक पहाड़ पर जो जहाज है वो आकर टिक गया। So maybe on this day of 7th of July, 7th of 7th month, may we all have rest and let our lives be settled. और इस
आज 7वें महीने के 7वीं तारीख और इस महीने के अंदर में हम सब जो है अपने जीवन के अंदर में और टिकने पाए, आराम पाने पाए। We can say in a sense that Noah and his family were under house arrest. और हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि नोआ और उसका परिवार जो है वो नजर बंद कर दिए गए। Yeah, they were under lockdown. और या तो हम कहें कि वो उन्हें एक घर के अंदर में उन्हें नजर बंद कर दिया And गया। maybe you might have noticed it was not Noah who locked the ark from inside, but it was God who closed or locked the ark from outside. और आपने इस बात को देखा होगा, पढ़ा होगा कि नोआ ने उस दरवाजे को अंदर से अपने हाथों से बंद नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने उस दरवाजे को बाहर से बंद किया है। So that means, so they were locked down. और इसका अर्थ है कि वो उन्हें अंदर बंद कर दिया गया, कैद कर दिया The गया। Bible says in Genesis chapter 7 verse 16, और उत्पत्ति 7 उसके 16 में बाइबल कहती the है, last part says the Lord shut them in, shut him in. और उसका आखिरी वाक्य कहता है कि तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। So I want to encourage you, maybe your life is like a wandering life. और हो सकता है कि आपका जीवन जो है वो इधर-उधर घूमने वाले बंजारों के समान You होगा। are restless. और आप बेचैन होंगे। Okay, that things are not working as you desired. और जैसे आपने कल्पना की होगी, जीवन वैसा कट नहीं रहा We होगा। don't know how long, how far Noah and his family traveled in the ark. और हम नहीं जानते कि नोआ और उसके परिवार में कितनी लंबी या कितनी दूरी उस जहाज के अंदर में बंद होकर So यात्रा they were की। wandering for almost so many months. और वो कई महीनों तक भटकते रहे, घूमते रहे। And their future were not known to them. और उन्हें अपने भविष्य के बारे में पता नहीं था। And Bible says in Psalms chapter 56 and verse 8. और भजन 56 उसके 8 में बाइबल कहती है, In the beginning verse, it's the beginning part. It says, "You number my wanderings." और वो कहता है तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। Okay, so maybe we are wandering maybe without any settlement. और हो सकता है कि हम भटक रहे होंगे, हम एक जगह टिक नहीं पा रहे So, होंगे। but then I want to tell you and encourage you this month of July, may God give every one of us rest. और इस जुलाई माह में मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर की ओर से वादा करना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपको इस महीने में आराम प्रदान करे, आपको टिकने पाए। Even in Ezra and Nehemiah we read, we know that people of Israel or Judah, they were taken in exile to Babylon. और हमने नहमिया में पढ़ा, इस्रा में पढ़ा कि जो यहूदा और इस्राएल के लोग हैं वो गुलामी में बेबीलोन में ले जाए गए। So 70 years they were in Babylonian captivity. और 70 वर्ष के लिए वो बेबीलोन राज्य के गुलामी में रहे। But then Cyrus, the Persian empire, when he came into power, और जब साइरस जो पर्सिया का बादशाह हुआ, जब वो अधिकार में आया, then he gave a commandment that all the people of Judah, let them go back to Israel and rebuild the temple of Jerusalem. और तब हमने इस बात को पढ़ा कि उसने एक महा आज्ञा को निकाला कि सारे इजराइल के लोग वापस इजराइल में जाएं और यरूशलेम के मंदिर का निर्माण करें। And the Bible says there were about 50,000 people who returned back. और बाइबल बताती है 50,000 लोग वापस इजराइल में लौटते And हैं। they all settled in their towns. और वे सारे के सारे अपने गांव नगरों में बस It गए। is in the 7th month. और वो भी 7वें महीने में। So there was insecurity and uncertainty. और वहाँ पे असुरक्षा और उन्हें पता नहीं था क्या होने वाला है। But then God changed their situation in the 7th month. लेकिन परमेश्वर ने 7वें महीने के अंदर में उनकी परिस्थितियों को बदल डाला। So may God even change our situations in the 7th month. और हो के परमेश्वर इस 7वें महीने के अंदर में हमारी परिस्थितियों को बदले। Let us claim this promise which is found in Isaiah chapter 32 and verse 18. और यशाया 32 उसके 18 में जो पाया जाता है वायदा, उसकी हम घोषणा करें। My people will dwell in a peaceful habitation, in secure dwellings, and in quiet
resting places. मेरे लोग शांति के स्थानों में निश्चिंत रहेंगे और विश्राम के स्थानों में सुख से रहेंगे। So may all of us dwell in a peaceful habitation. और हो कि हम सब शांति के स्थानों में निश्चिंत रहने पाएं। All our restlessness, all our problems, difficulties, let them be solved. और हो कि हमारी सारी बेचैनियां, समस्याएं और जितनी भी दिक्कतें हैं वो सब का हल होने The पाए। second thing I want to bring to your notice is, और दूसरी बात जो मैं आपके ध्यान में लेकर आना चाहता I हूँ, want you to go home and read Leviticus chapter 23. और मैं चाहता हूँ कि आप घर जाके लय व्यवस्था उसका 23वां अध्याय जरूर The पढ़ें। 23rd chapter of Leviticus, anybody knows what does that chapter speak about? और लय व्यवस्था उसका 23 अध्याय कोई जानता है कि उसके उस अध्याय में किस बारे में कहा गया है? Without looking into your Bibles. और बिना अपनी बाइबल में देखे हुए आप बता सकते हैं क्या? It speaks about the feasts of the Lord. और वो परमेश्वर के पर्व के बारे में बताता है। God gave 7 feasts to the people of Israel to observe every year. परमेश्वर ने इज़राइल के लोगों को प्रति वर्ष 7 पर्व मनाने के लिए दिए। And those 7 feasts have prophetical meaning. और वो सातों पर्वों का एक भविष्य सूचक अर्थ था। But there is no time for me to explain all those things. और मेरे पास अभी समय नहीं है कि उन सब को मैं आपको खुला के बताऊं। But I have preached about it. I think it is on the YouTube. You can watch it. और मैंने उसके बारे में प्रचार किया है, वो YouTube में संदेश उपलब्ध है, आप उसे सुन सकते हैं। I preached it on 26th of September 2021. और देखिए 2021 में 26 सितंबर को मैंने उसे प्रचार किया था। So there were 7 feasts. In the first month, God told them to observe 3 feasts. और परमेश्वर ने उन्हें 3 पर्वों को पहले महीने में मनाने के लिए कहा। And the 4th feast was to be observed in the 3rd month. और जो चौथा है वो 4 पर्व जो है वो चौथे महीने में This is the 3rd month. और तीसरे महीने में मनाने के लिए Then there कहा। was 4 months of gap. और उसके मध्य में 4 महीने का अंतराल And है। in the 7th month, God asked them to observe 3 feasts. और 7वें महीने में परमेश्वर उन्हें 3 पर्व मनाने के लिए बोलता The है। first 4 feasts, we can say, have been fulfilled with the Pentecost, on the day of Pentecost. और जो पहले 3 पर्व हैं और 4 पर्व हैं, आप इस बात को कह सकते हैं कि वो पेंटिकोस के दिवस में पूर्ण हो जाते हैं। Passover was filled with the crucifixion of Jesus. और देखिए फसह का पर्व जो है यीशु के क्रूसीकरण पे समाप्त होता है। Okay, like that you can watch it on the YouTube. और आप वो संदेश को YouTube में सुन सकते So in हैं। the 7th month there were 3 feasts they were asked to observe. और 7वें महीने के अंदर में 3 पर्व उन्हें मनाने के लिए कहा गया। So the next 3 points I want to share from the 23rd chapter of Leviticus. और अगले 3 बिंदु जो है वो लय व्यवस्था 23 अध्याय में से मैं आपको कहना On the चाहूंगा। first day of the 7th month, God told them to observe the feast of trumpets. और देखिए 7वें महीने के पहले दिन में परमेश्वर ने उन्हें तुरही बजाने के पर्व को मनाने के लिए कहा। So it is written in Leviticus chapter 23 verses 23 to 25. और वो लय व्यवस्था 23 अध्याय उसके 23 से लेकर 25 के मध्य में लिखा हुआ है। The feast of the trumpets, they have to blow the trumpets all over Israel. और वो तुरही का पर्व है और उन्हें पूरे इज़राइल के अंदर में तुरही बजाना है। Anybody wants to guess what it will be in the future? और आप में से कोई इस बात को कहना चाहेगा कि भविष्य में वो किस बात को दर्शाता है? Yes, rapture. और वो प्रभु के आगमन उठाए जाने के बारे में बात करता है। If you read 1 Corinthians 15 and verse 51, और यदि आप पहला कुरिन्थियों 15 उसका 51 वचन को and पढ़ेंगे also 1 Thessalonians chapter 4 verse 16, और पहला थिस्सलुनीकियों 4:16 को पढ़ेंगे, in both these verses it speaks about the trumpet, the last
trumpet will be blown. और ये दोनों पद जो है आखिरी नरसिंगे के बारे में बात करता है। Maybe we will just read 1 Corinthians chapter 15 verses 51 and 52. और पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 51 और 52 हम पढ़ेंगे। Behold, I tell you a mystery, we shall not all sleep, but we shall all be changed in a moment, in a twinkle of an eye, at the last trumpet. For the trumpet will sound, and the dead will be raised incorruptible, and we shall be changed. और देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरी फूकते ही होगा, क्योंकि तुरी फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। Yes, even 1 Thessalonians 4 verse 16 also speaks about the trumpet will be blown. और पहला थिस्सलुनीकी 4:16 भी तुरी फूकने या नरसिंगे फूकने के बारे में बात करता है। So in the 7th month, let us remember about the rapture. और हो के 7वें महीने में प्रभु के आगमन और उठाए जाने के बारे में हम विचार करें। We have to prepare ourselves for the rapture. और हमें तो उठाए जाने के लिए अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता है। We know about the 10 virgins, 5 of them were prepared, 5 of them were not prepared. और हम 10 कुंवारियों के बारे में जानते हैं, जिसमें से 5 तैयार थी और 5 तैयार नहीं थी। Jesus spoke in the 24th chapter of Matthew and also in other chapters, the similar chapter in Mark 13 and also Luke 21, that one will be taken up and one will be left out. और देखिए मत्ती 24 में और लूका में और मरकुस में भी और इसी प्रकार यीशु मसीह ने बात कही कि एक उठा ली जाएगी और एक छोड़ दी जाएगी। Jesus said two will be lying, two will be sleeping, one will be taken up, one will be left out. और यीशु ने कहा 2 जने के खाट पे सो रहे होंगे, एक उठा लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। 2 men will be working in the field, one will be taken up, one will be left out. और 2 मनुष्य खेतों में काम कर रहे होंगे, एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। 2 women will be grinding and one will be taken and one will be left out. और 2 महिलाएं चक्की पीसती होंगी, एक उठा ली जाएगी, दूसरी को छोड़ दिया So जाएगा। in the 7th month, let us prepare ourselves for the rapture that is going to happen. और हो के 7वें महीने के अंदर में हम अपने आप के उठाए जाने को लिए तैयार करें जो होने पर है। The next great event that is going to happen in the world is rapture. और देखिए संसार के अंदर में एक जो बड़ा कार्य होने पर है वो हमारे उठाए जाने का कार्य है। Millions of people will be caught up in heaven and they all will be missing all of a sudden all over the world. और लाखों लाखों लोग जो है आकाश पे स्वर्ग की ओर उठा लिए जाएंगे, लाखों लाखों लोग संसार से गायब हो जाएंगे। Okay, we will not all die, but we will be changed. और हम सब मरेंगे नहीं, लेकिन हम अविनाशी देह में परिवर्तित हो जाएंगे। This mortal body will be shown and it will come out as an immortal body. और देखिए नाशवान देह यहीं पर रह जाएगा और हम जो है अविनाशी देह के अंदर में परिवर्तित हो जाएंगे। So we will have the resurrected bodies. और हमारे पास पुनरुत्थान पाए शरीर होगा। Are we ready for the rapture that is going to happen? और क्या हम उसे उठाए जाने के लिए तैयार हैं जो होने पर है? Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! प्रभु की महिमा हो। We can come to church, but we must be ready for the rapture. और हम तो कलीसिया आ सकते हैं, लेकिन हमें तो उठाए जाने के लिए अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता है। And the third R that I want to bring to your notice. और तीसरा बिंदु जो मैं आपके ध्यान में लेकर आना चाहता हूँ, It is the day of atonement. और वो शुद्धिकरण का दिन। Okay, first day of the 7th month is the day of trumpets. और देखिए 7वें महीने का पहला दिन जो है वो नरसिंगे फूके जाने का दिन है। And the 10th day of the 7th month is the day of atonement or the feast of atonement. और देखिए जो 10वां दिन है 7वें महीने का, वो जो है वो शुद्धिकरण का दिन है। Actually, it is not a feast; it was a day of mourning. और वो एक पर्व नहीं, लेकिन वो उदासीन या दुख मनाने का दिवस है। For 24 hours, all the Jews fast and repent of their sins, even today. और देखिए 24 घंटे सारे इज़राइल उपवास करके अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं, वो आज भी करते हैं। Day of atonement. और उसे प्रायश्चित का दिन कहा जाता है। The third thing is
all of us need to repent. और तीसरी बात है कि हम सबको मन फिराने की आवश्यकता है। First is rest. First is rest. और पहला आराम है, Second is rapture. और दूसरा उठाया जाना, Third is repentance. और तीसरा प्रायश्चित करना मन फिराने का है। You know, in the book of Revelation, Jesus asks the church to repent. और देखिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में यीशु मसीह कलीसिया से मन फिराने के लिए कहते हैं। He told the 5 churches there. और उसने 5 कलीसियाओं को वहां कहा Not है। only that, when we see in the New Testament there are 21 epistles from Romans to Jude. और देखिए रोमियो की पुस्तक से लेकर यहूदा की पुस्तक तक 21 पत्रियां हैं। Okay, Paul, James, Peter, John and Jude, 5 of them wrote those books. और देखिए पौलुस ने, यूहन्ना ने, पतरस ने, यहूदा ने और याकूब ने 5 मिलकर पत्रियों को लिखा है। And what they have written is that the churches should repent. और उन्होंने लिखा क्या है? उन्होंने लिखा है कि कलीसिया को प्रायश्चित करने की या मन फिराने की आवश्यकता है। So even on this month, even during this month of July, the 7th month, let us repent and be ready for the coming of the Lord. और हो के इस 7वें महीने के अंदर में हम मन फिराए और परमेश्वर के आगमन के लिए अपने आप को तैयार We करें। read about the Day of Atonement in Leviticus chapter 23 verses 26 to 32. और देखिए लेवितिकस उसके 26 से लेकर 32 तक हम 23वें अध्याय में देखते हैं। And observance of that day, how it should be done, is explained in the 16th chapter of Leviticus. और किस प्रकार उस दिवस को हमें मनाना है वो लेवितिकस के 16वें अध्याय के अंदर में लिखा गया You may है। have known that only once in a year, the whole high priest, only the high priest can enter into the most holy place. और आप इस बात को जानते होंगे कि साल में एक बार केवल महायाजक महापवित्र स्थान के अंदर में प्रवेश कर सकता है। Nobody else can go into the most holy place. और महापवित्र स्थान में कोई और प्रवेश नहीं कर सकता। And no other day anybody can go into the even no other day can the high priest go into the most holy place. और यहाँ तक कि महायाजक भी हर किसी दिन में महापवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर सकता। And that is the Day of Atonement, when the high priest can go into the most holy place. और ये वो दिन है जो प्रायश्चित का दिन है। उसी दिन के अंदर में महायाजक महापवित्र स्थान के अंदर में प्रवेश कर पाता He है। used to take the blood of atonement for himself, for his sins, and for all the sins of the people of Israel. और वो अपने पाप के लिए और इज़राइल समस्त इज़राइल मंडली के पापों के लिए अपने हाथ में प्रायश्चित का लहू लेकर उसमें प्रवेश करता है। So let us also fast and repent during this month of July. और हो कि हम लोग भी उपवास करें और प्रार्थना करें, विशेषकर इस जुलाई महीने के अंदर अपने अपने पापों से हम प्रायश्चित करें। As the Bible says in 2 Chronicles chapter 7 and verse 14, if my people who are called by my name humble themselves, humbling means fasting, humble themselves, pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I in heaven will hear their prayers, forgive their sins and heal their land. और जिस प्रकार बाइबल दूसरा इतिहास 7 अध्याय उसके 14 वचन में बाइबल कहती है, यदि मेरे लोग जो मेरे नाम के कहलाए जाते हैं, यदि वे अपने पाप से फिरे और दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। Amen. Hallelujah. So may God help every one of us during this month of July. We will have a great repentance and great closeness with God. और वो के परमेश्वर हम सब की सहायता करे कि जुलाई महीने के अंदर में हम सब परमेश्वर की नजदीकी में जाएं और अपनी नजदीकी परमेश्वर के साथ में बढ़ाने पाएं। And then the fourth thing is the third feast of the 7th month, or the fourth point for today. और आज के लिए जो चौथा बिंदु है वो चौथा पर्व है। Is the third और part. तीसरे पर्व के बारे में लिखा है And that is on the 15th day of the 7th month. और वो 7वें महीने के 15वें दिन में They have to have the feast of
tabernacles और or tents, और- झोपड़ियों का पर्व. और उन्हें झोपड़ियों के पर्व को बनाना They है have to stay in tents for 7 days. और उन्हें 7 दिनों के लिए झोपड़ियों में रहना है Leviticus chapter 23 verses 33 to 44. और लैवी व्यवस्था 23 अध्याय उसका 33 वचन से लेकर 44 वचन तक And maybe we will just read one verse, that is the 42nd verse, 43rd verse maybe. It says, maybe 42, 43, you shall dwell in tents or booths for 7 days. All who are native Israelites shall dwell in booths, that your generations may know that I made the children of Israel dwell in booths when I brought them out of Egypt, out of the land of Egypt. और 7वें दिन तक तुम झोपड़ियों में रहा करना अर्थात जितने जन्म के इजरायली हैं वे सब के सब झोपड़ी में रहें इसलिए कि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लोग जान रखें कि जब यहोवा हम इजरायलियों को मिस्र देश से निकाल कर ला रहा था तब उसने उनको झोपड़ियों में टिकाया था मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ So the fourth point is remember. और चौथा बिंदु है स्मरण रखो God told the people of Israel to observe the feast of tents. और परमेश्वर ने इजराइल के लोगों को कहा कि तुम्हें झोपड़ी के पर्व को याद रखना है Why? और क्यों Because they have to remember that the people of Israel lived in the tents for 40 years in the wilderness. और इसलिए ताकि वो इस बात को याद रखे जब वो मिस्र से रहे निकले थे तब इजराइल जाति 40 साल झोपड़ियों में रहे They did not have a home to live. और उनके पास में पक्के मकान नहीं थे They were in the wilderness for 40 years. और वो लोग 40 साल के लिए मरुभूमि में रहे So we have to remember और हमें इस बात को याद रखना है that we are pilgrims and we are travelers or sojourners in this world. और हमें इस बात को याद रखने की आवश्यकता है कि हम तो इस संसार के अंदर में यात्री हैं Okay, maybe we will read that verse from the book of 1 Peter chapter 2 and verse 11. और पहला पत्र दूसरा अध्याय उसका 11 वचन से हम पढ़ेंगे Just 11th verse. It says, Beloved, I beg you as sojourners and pilgrims, abstain from fleshly lust which war against the soul. हे प्रियो मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो And also we know Philippians 3:20 it says our citizenship is in heaven. और देखिए फिलिपियों 3:22 कहता है कि हमारी जो नागरिकता है वो स्वर्गीय नागरिकता है Sure we are Indian citizens, और हाँ हम तो भारतीय नागरिक जरूर हैं but then our citizenship is in heaven, the Bible says. और बाइबल इस प्रकार से कहती है हमारी अनंत नागरिकता स्वर्ग की नागरिकता So we है have to remember this world is not our eternal home. और हमें हमेशा याद रखना है ये संसार हमारा अनंत घर नहीं है Maybe we will read a couple of verses from the book of Hebrews chapter 11. और इब्रानी उसके 11वें अध्याय से कुछ पदों को हम पढ़ेंगे 11th chapter and verse 9 of Hebrews. और इब्रानी 11 अध्याय उसका 9 वचन अगर आप पढ़ते हैं By faith he means Abraham dwelt in the land of promise as in a foreign country, dwelling in tents with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise. विश्वासी से उसने यानी कि अब्राहम के बारे में कह रहा प्रतिज्ञा किए हुए देश में पराए देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसकी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया Yeah, let's also read Hebrews chapter 11 verse 13. और आइए इसका 13वां वचन भी पढ़े It says they all died in faith, not having received the promises, but having seen them afar off, were assured of them, embraced them, and confessed that they were strangers and pilgrims
on the earth. वे ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। Even today, the people of Israel, during this Feast of Tabernacles, they live in tents. और देखिए आज भी इज़राइल जो है झोपड़ी के पर्व के समय वे लोग तंबू बनाकर रहते हैं। Not in their homes, they're built in their mansions. और वो लोग अपने बड़े-बड़े भवनों के अंदर में नहीं रहते। They erect tents on the ways, and then they live there for 7 days with the families. और वो लोग जो हैं बाहरी रास्तों पर अपने तंबुओं को लगाते हैं और अपने परिवारों के साथ 7 दिनों के लिए वहीं रहते हैं। Sure, during the days of the Bible, there was no facility when they were living in the tents. और हाँ, बाइबल के दिनों में जब लिखा गया तब इस प्रकार की सुविधाएं नहीं हुआ करती थी जो आज तंबुओं में मिलती है। Today, the tents, they are air conditioned, they have toilets, they have every facility, bedrooms, kitchen, everything they have. और आज जो सुविधाएं हैं उनके तंबुओं के अंदर में उनके पास एसी है, टॉयलेट्स है, बेडरूम्स है, सारी सुख सुविधाएं उनके तंबुओं में उपलब्ध होती And there है। are so many Christians in Western countries who also observe this tabernacle feast, and they also live in tents. और देखिए पाश्चात्य देशों के अंदर बहुत सारे मसीह लोग हैं जो झोपड़ियों के पर्व को मनाते हैं और वो लोग भी इन दिनों में झोपड़ियों के अंदर या तंबुओं के अंदर में 7 दिनों के लिए रहते हैं। God helped us also. Once I could go to Switzerland, it was that time, so they all were living in tents, so we also lived with them in the tents. और परमेश्वर ने सहायता की, एक समय जब मैं स्विट्जरलैंड में था, हम उसी समय पे पहुंचे, वे सब लोग तंबुओं में रह रहे थे, तो हमको भी मौका मिला कि हमने उनके साथ रहने पाए। Okay, the first thing is rest. God will rest every one of us. और पहला है आराम, परमेश्वर हम सबको आराम प्रदान करे। And then the second thing is rapture. और दूसरा है उठाया जाना। Third is repentance. और तीसरा मन फिराओ। Fourth is remember that we are sojourners, pilgrims. और चौथा है कि हमें याद रखना है कि हम परदेशी हैं, हम यात्री मात्र हैं। And the fifth thing is, और पांचवी बात है, if you read Ezra chapter 3 and verse 6. और आप एज़रा उसका 3रा अध्याय और उसका 6वां वचन It पढ़ेंगे। says on the first day of the 7th month, और they began to offer burnt offerings to the Lord, though the foundation of the Lord's temple had not yet been laid. 7वें महीने के पहले दिन से वे यहोवा को होम बलि चढ़ाने लगे, परंतु यहोवा के मंदिर की नींव तब तक ना डाली गई थी। Yes, it says on the first day of the 7th month, they began to offer burnt offerings. और वहाँ लिखा है कि 7वें महीने में से उन्होंने जो है दीपदान जलाना आरंभ कर दिया। And the Bible also says the foundation of the temple has not been laid by them. और बाइबल ये भी कहता है कि वहाँ मंदिर की नींव तक नहीं पड़ी थी। So the fifth point is restart that which you have left. और 5वां बिंदु है कि जो आपने छोड़ दिया था उसे पुनः आरंभ करें। You know, the people of Israel or Judah, they were taken into captivity by the Babylonians. और आप जानते हैं इस्राएल और यहूदा के लोगों को बेबीलोन के लोगों के द्वारा गुलाम बना के ले जाया गया। The temple of Jerusalem was broken down and burned down. और यरूशलेम का मंदिर तोड़ दिया गया, उसे जला दिया गया। Okay, even the city of Jerusalem was burned down. और उसके साथ साथ पूरे यरूशलेम नगर को भी जला डाला So गया। they were in Babylon for 70 years. और 70 साल के लिए वो बेबीलोन में गुलाम बन के रहे। After that, when Cyrus, as I told you, when Cyrus became the emperor, he commanded that all the Jews should go back to Jerusalem to rebuild the temple of Jerusalem. और जैसे मैंने आपको बताया कि साइरस जब राजा बना तो उसने एक आज्ञा को निकाला कि सारे यहूदी जो हैं अपने देश वापस जाएं और यरूशलेम के मंदिर का निर्माण करें। If you know the scriptures, you can understand even before 300 years of his birth, of Cyrus's birth,
और यदि आप वचन को अच्छे से जानते पढ़ते हैं तो आप इस बात को जानते होंगे कि साइरस के जन्म के 300 वर्ष पूर्व ही Okay, in Isaiah chapter 44 and verse 22, और यशाया 44 उसके 22वें पद में God through Isaiah prophesied और परमेश्वर यशाया के द्वारा भविष्यवाणी करते हैं taking the name of Cyrus. और वो साइरस का नाम लेकर बोल रहा है। Maybe we can read that verse, Isaiah 44:22. Who says of Cyrus, he is my shepherd, and he shall perform all my pleasure, saying to Jerusalem, you shall be built, and to the temple your foundation shall be laid. मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान 44:22. Huh? Okay, Isaiah. Read. काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मेरी और फिर लौटा क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। Oh, sorry, 44:28. और ये last verse of 44. जो पुत्र के विषय में कहता है वह मेरा ठहराया हुआ चरवाहा है और मेरी इच्छा पूरी करेगा। यरूशलेम के विषय कहता है वह बसाई जाएगी और मंदिर के विषय तेरी नींव डाली जाएगी। Yes. So about Cyrus, Cyrus was not born by them. He was prophesying 300 years before. और देखिए ये साइरस के बारे में उस समय साइरस का जन्म नहीं हुआ था, उसके जन्म के 300 वर्ष पूर्व ये भविष्यवाणी हुई है। You may remember me telling there are seven people in the Bible who have been named by God before their birth. और मैंने आपको पहले भी बताया, आपने मुझे सुना होगा, ऐसे 7 जन हैं जिनके जन्म से पूर्व परमेश्वर ने उनके नाम बतलाए हैं। Okay, can you tell और क्या आप बता सकते हैं who was the first name that was given before the birth? और वो कौन सा पहला नाम है जो जिसके जन्म से पहले उसका नाम परमेश्वर ने कहा? Ishmael. और इश्माइल, Second, और दूसरा Isaac. इसहाक, Third, तीसरा Solomon. और सुलेमान, Fourth, चौथा John the Baptist. और यूहन्ना बपतिस्मा दाता, Fifth, और पांचवा Jesus. और यीशु। These are all just before their birth. These names were given for Jesus. The name was given earlier. So these names were given before their birth for 5 of them. और देखिए ये वो 5 लोग हैं जिनके जन्म से पहले ही परमेश्वर ने उनके नाम बतलाए हैं। But then for 2 men, और लेकिन 2 जन ऐसे हैं before their birth, God prophesied about them. और उनके जन्म से पहले ही परमेश्वर उनके बारे में भविष्यवाणी कर रहा है। One is Cyrus, I already told, 300 years before his birth. और देखिए उसमें से पहला जो है वो साइरस है जिसके जन्म के 300 वर्ष पूर्व भविष्यवाणी होती है। Anybody wants to guess or you may know? Remember what I told you earlier? Who is the second person? His name was given 125 years before his birth. और देखिए उसका नाम जो है 125 वर्ष पूर्व उसके जन्म से पहले किया गया है। Okay, no problem. Go home and read 1 Kings 13th chapter. It speaks about King Josiah, about whom the prophet prophesies that he will destroy the altar at Bethel. आप देखिए पहला राजा, उसको जरूर आप घर जाके पढ़िएगा। राजा जोसाया के बारे में लिखा है जो सारी वेदियों को ढाता है। Okay, so Cyrus was, God prophesied that Cyrus the king will rise and he will command to rebuild the temple of Jerusalem. अब परमेश्वर ने वहाँ भविष्यवाणी की कि उस दो जो साइरस राजा है वो उठेगा और वो परमेश्वर के मंदिर के निर्माण की आज्ञा निकालेगा। So we read about it in the 25th chapter of 2 Kings and also the last verses and also the first chapter of Ezra, first few verses. और देखिए दूसरा राजा 25वां अध्याय के कुछ वचनों में हम उसके बारे में पढ़ते हैं और एजरा के पहले अध्याय के दूसरे अध्याय में भी हम उसके बारे में So पढ़ते when हैं। Cyrus commanded, so lot of Jews, about 50,000, the names are given, the number is given in the 2nd chapter of Ezra, or maybe 3rd chapter of Ezra. So they all traveled from Persia to
Israel. और देखिए दूसरे अध्याय इज़रा के या तीसरे अध्याय के अंदर में उनकी सब की गिनती लिखी हुई है, जितने इजरायली जो है फारस राजा के यहाँ से वापस इजराइल में आते हैं। Ezra second chapter. और दूसरे अध्याय के अंदर में To be precise, 49,897 people returned. और वहाँ पर 48,000 It's okay. Okay, so about 50,000. So they all returned, and you know under whose leadership they returned? और वो किनके अगुवाई में वो वापस आते हैं? It is in the book of Ezra, under whose leadership they all returned. और ये इज़रा की पुस्तक में लिखा हुआ किसकी अगुवाई में वो सब लौटकर वापस इजराइल पहुंच रहे हैं। Who rebuilt the temple? और किसने मंदिर का पुनर्निर्माण किया? Nehemiah rebuilt the walls of Jerusalem. Who rebuilt the temple of Jerusalem? और नेहेमिया ने तो यरूशलेम की दीवार को दोबारा बनाया था, लेकिन मंदिर किसने बनाया? That is after 72 years after the rebuilding of the temple, Nehemiah rebuilt the walls of Jerusalem. और देखिए मंदिर बनाने के 72 साल के बाद में ही नेहेमिया ने दीवार का निर्माण किया है। Okay, anybody wants to guess? और कोई बोलना चाहेगा? You don't know who rebuilt the temple of Jerusalem. और आप नहीं जानते कि किसने यरूशलेम के मंदिर को बनाया? Zerubbabel. और ज़रुब्बाबेल ने। Many people say Ezra. और बहुत सारे लोग कहते हैं वो इज़रा है। It's not Ezra. Ezra, we read about Ezra only in the 7th chapter of Ezra. और देखिए इज़रा के बारे में हम 7वें अध्याय में इज़रा के बारे में पढ़ते हैं। But then in the first 6 chapters, it was under the leadership of Zerubbabel. He was a governor. Under his leadership, they returned and they rebuilt the temple. और पहले जो 6 अध्याय हैं वो ज़रुब्बाबेल के बारे में है, जो कि वो वहाँ का अधिपति है, और उसी की अगुवाई में वो सब लौट कर आते So हैं। they came, and the very first thing that they did was they built an altar and began to offer sacrifices unto God. और देखिए सबसे पहले वो कार्य करते हैं कि मंदिर की नींव को डालकर वो वहाँ परमेश्वर की वेदी का निर्माण कर उसकी आराधना आरंभ करते They did हैं। not put the foundation for the temple. They built the altar first. और उन्होंने मंदिर के लिए नींव नहीं डाली, लेकिन पहले उन्होंने वेदी का निर्माण किया, Because they wanted to restart the worship or the sacrifices towards God. और क्योंकि वो लोग परमेश्वर के प्रति जो बलिदान है, आराधना है, उसे दोबारा से आरंभ करना चाहते When थे। did it start? और ओके वो हम दोबारा पुनर्स्टार्ट शुरू करें। It was on the first day of the 7th month. और वो पहला दिन था 7वें महीने का। So we also might have left so many things. और हो सकता है कि हमने भी बहुत सारी चीजों को छोड़ दिया On the होगा। 1st of January, you might have decided I will read the Bible every day. और 1 जनवरी को आपने निर्णय किया होगा प्रतिदिन मैं बाइबल को पढ़ूंगा, And every day I will pray for so and so time. और प्रतिदिन मैं इसी समय पर प्रार्थना करूंगा, And I will do this, I will do that. और मैं ये काम करूंगा, मैं वो काम करूंगा। But within few days everything is gone. हाँ, लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर में सब उड़ गया। But I want to tell you from this day, restart what you have left. और लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ जो आपने अधूरा छोड़ दिया उसे दोबारा से शुरू करें। So 7th month they restarted the offerings and the sacrifices. और 7वें महीने में उन्होंने बलिदान और भेंट चढ़ाना दोबारा से शुरू कर So दिया। let us from this day restart things, spiritual exercises that we had left. और होके आज से हम वो चीजें जो आत्मिक कार्यों को हमने अधूरा छोड़ दिया उन्हें दोबारा से आरंभ करें। Restart sharing the gospel with people. और सुसमाचार लोगों के साथ में बांटना उसे दोबारा से आरंभ करें। Restart fasting and prayer. और उपवास और प्रार्थना को दोबारा से शुरू करें। Children, on the 1st of January you might have decided I will obey my parents. और बच्चों आपने 1 जनवरी को निर्णय किया होगा मैं माँ बाप की आज्ञा को मानूंगा। Maybe you left that. और हो सकता है कि आप हट गए होंगे। Restart obeying your parents from today. और आज से आप दोबारा से शुरू करिए अपने माँ बाप की आज्ञा को On मानिए। the 1st of January, you children would have decided I will study my books every day at least for 1 hour. और आप बच्चों ने निर्णय किया
क्या होगा? पहली जनवरी को कम से कम 1 घंटा मैं अपने अध्ययन को करूंगा। But during exams also you don't study your books for 1 hour. और देखिए, लेकिन आप परीक्षाओं के दिनों में भी आप अपनी किताबों को 1 घंटा नहीं पढ़ते होंगे। So restart studying regularly your books and your notes. और आप दोबारा से आरंभ करें अपनी किताबों को, अपने लेखन को पढ़ने के लिए। So read to restart things, spiritual things, even things that are our duties, everything let us restart again. और हो के हमारी जितनी भी आत्मिक कार्य है, हमारे नौकरी कार्य, सब कुछ हम दोबारा से उसे आरंभ करें जो मध्य में छोड़ दिया है। And then the sixth thing is, और छठवां बिंदु जो है, we read 2 verses for this. और उसके लिए 2 वचनों को हम पढ़ेंगे। One is Nehemiah chapter 8 verses 2 and 3. और नehemiah उसका 8 second and third verse. और उसका दूसरा और तीसरा वचन। It says, so on the first day of the 7th month, Ezra the priest brought the law before the assembly, which was made up of men and women, and all who were able to understand. Then he read from it in the open square that was in front of the water gate from morning until midday. तब एजरा याजक 7वें महीने के पहले दिन को क्या स्त्री क्या पुरुष जितने सुनकर समझ सकते थे उन सबों के सामने व्यवस्था को ले आया। वह उसकी बातें भोर से दोपहर तक उस चौक के सामने जो जल फाटक के सामने था, क्या स्त्री क्या पुरुष और सब समझने वालों को पढ़कर सुनाता रहा, और लोग व्यवस्था की पुस्तक पर कान लगाए रहे। Yes, for 6 hours he read the Bible. और 6 घंटे वो बाइबल पढ़ता रहा। Because it says from the morning till midday. और क्योंकि वहाँ लिखा है भोर से दोपहर तक। Okay, their morning starts at 6 a.m. और उनकी जो भोर है वो सुबह 6 बजे आरंभ होता है। And until midday is 12 noon. So he was reading the scriptures for 6 hours. और दोपहर का मतलब 12 बजे, यानी कि वो 6 घंटे उस व्यवस्था की पुस्तक को पढ़ता रहा। And then the second verse that I want to bring to your notice is, और दूसरा वचन जो मैं आपके ध्यान में लेकर आना चाहता हूँ, when we read Haggai chapter 2 and verse 1. और अगर आप पढ़ेंगे हगाई 2 उसका 1, In the second year of King Darius, on the 21st day of the 7th month, the word of the Lord came through the prophet Haggai. और फिर 7वें महीने के 21वें दिन जो यहोवा का यह वचन हगाई भविष्यवक्ता के पास पहुंचा। Okay, so the sixth point is read and receive the word. और छठा बिंदु है पढ़ें और परमेश्वर से प्राप्त करें। Okay, the first thing is we know Ezra read the scriptures for 6 hours so that all the people could hear. और पहला वचन हमने पढ़ा कि इस्रा ने सब लोगों के सामने 6 घंटे व्यवस्था को पढ़ा ताकि सब सुन सकें। Today we read for 6 minutes, you feel sleepy. और आज हम 6 मिनट पढ़ते हैं, हमें नींद आने लगती है। I'm not telling you you read every day 6 hours. That is not possible with your jobs, with your your other duties. अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप प्रतिदिन 6 घंटा पढ़िए, क्योंकि ये संभव नहीं है। आपके पास बहुत सारे दायित्व हैं, आप नौकरी करते हैं, काम है। As a joke, I can say, if you want to get sleep, read the Bible, you will get sleep. और देखिए मजाकिया रूप में कह रहा हूँ, यदि आपको नींद चाहिए बाइबल पढ़ना शुरू करिए, आपको नींद आ जाएगी। Within 5 minutes you will get sleep. और फिर 5 मिनट के अंदर में आपको सुगम नींद आ No जाएगी। need of sleeping pills. और ये आपकी नींद की गोली से ज्यादा प्रभाव But पड़ेगा। that should not be the case. When you are reading the Bible, you are reading the love letter. और देखिए ऐसी परिस्थिति हमारे साथ नहीं होना चाहिए। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, हम अपने परमेश्वर के प्रेम पत्र को पढ़ रहे हैं। Okay, so let us read with all attention, with all concentration. और जब हम पढ़ते हैं तो पूरे ध्यान के साथ में ध्यान केंद्र करके हमें बाइबल को पढ़ना है। Read the Bible. और बाइबल को पढ़ें। If you read Hosea chapter 8 and verse 12. और ये होशाया 8 उसके
12 को अगर आप I पढ़ेंगे, have written the wondrous things of my law, but they consider it as something alien. और मैंने तो अपने वचन के गहरी बातों को लिखा है, लेकिन वो तो उसे अनजान बातें समझते हैं। Maybe it is beautiful in Hindi. मैंने अपनी व्यवस्था की लाखों बातें लिखते आया, परंतु उन्हें पढ़ाया समझते हैं. So we have many times we think, oh, Bible is only for pastors and leaders. आप देखिए, कई बार हम ऐसा सोचते हैं बाइबल पढ़ना तो केवल पासवानों और अगुओं के लिए है। Okay, but then we all should read the Bible and meditate upon it. और लेकिन हम सबको बाइबल पढ़ना है और उसके ऊपर में मनन करने की So आवश्यकता may है। God give us the grace to read the Bible. और हो के परमेश्वर हमें अनुग्रह प्रदान करे कि हम बाइबल पढ़ सके। So they not only read the Bible, और उन्होंने केवल बाइबल पढ़ा ही नहीं, but also they received the word of God. और उन लोगों ने परमेश्वर से प्राप्त भी किया। You may remember the teaching from the book of Haggai. और आपको याद होगा हगाई से जो शिक्षा दिया गया। Actually, when the people of Israel came with Zerubbabel to rebuild the temple of Jerusalem, और जब इस्राएल के लोग जरुब्बाबेल के साथ में यरूशलेम के मंदिर को बनाने के लिए आते हैं, they restarted the offerings and the sacrifices. और उन्होंने बलिदान चढ़ाना, भेंट चढ़ाना दोबारा से आरंभ कर दिया। And they put the foundation for the temple. और उन्होंने मंदिर निर्माण के लिए नींव भी डाल दी। But then there were so many enemies who opposed their construction. और लेकिन बहुत सारे शत्रुओं ने उनके मंदिर निर्माण के कार्य में बाधा डाल दिया। So for 16 years, the work of the reconstruction of the temple stopped for 16 years. आप देखिए, कल मंदिर के निर्माण का कार्य 16 साल जो है वो रुक गया। And then God sent Haggai. और उसके बाद परमेश्वर ने हगाई भविष्यवक्ता को भेजा। And he prophesied. और वो भविष्यवाणी कर रहा है, My house is in ruins, but you are all living in paneled houses. और परमेश्वर का भवन तो टूटा पड़ा है, लेकिन तुम तो छत वाले घरों में रह रहे हो। So when the word of God came to Haggai, और जब परमेश्वर का वचन हगाई के पास में पहुंचा, and he prophesied to the people of Israel, और जब उसने इस्राएल के लोगों पर भविष्यवाणी को किया, they rebuilt the temple. और उन्होंने परमेश्वर के मंदिर का पुनर्निर्माण किया। They did not bother about the opposition that was coming from the enemies. और शत्रुओं की ओर से जो बाधाएं आ रही थी, उन्होंने उस बात की परवाह किए बिना मंदिर का निर्माण किया। So in the 7th month, let us receive the word of God. और 7वें महीने में होके हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें। Today, because of opposition, we have stopped sharing the gospel with the people. और आज विरोध के कारण हमने लोगों के साथ में सुसमाचार बांटना रोक दिया है। But let us receive the word of God and share it with others. और होके हम परमेश्वर के वचन को प्राप्त करें और दूसरों के साथ में उसे साझा करें। Let us wait upon the Lord and receive the word of God. और होके हम परमेश्वर के चरणों पे इंतजार करें, परमेश्वर के वचन को प्राप्त May करें। God guide us to the people. और होके परमेश्वर हमें लोगों तक अगुवाई करे। People are hungry and thirsty for the word of God. और लोग परमेश्वर के वचन के लिए भूखे और प्यासे हैं। People are fed up or frustrated with their religious activities. और लोग अपने धर्म के कार्यों से थक गए हैं, परेशान हो गए हैं। So let us receive the word and let us obey the word. और होके हम परमेश्वर के वचन को प्राप्त करें और उसके प्रति आज्ञाकारी बने। When we read about the church at Thessalonica, और जब हम थिस्सलुनीकिया में कलीसिया के बारे में पढ़ते हैं, 1 Thessalonians chapter 2 verse 13, Paul says, और पहला थिस्सलुनीकी दूसरा अध्याय में पौलुस इस प्रकार कहते हैं, "You did not receive the word as man's word, but as God's word." और हम इस वचन को मनुष्य के नहीं लेकिन परमेश्वर का वचन समझकर ग्रहण करते हैं। Okay, so they received the word. So let us also receive the word of God. और होके हम भी परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें। So first, God wants to give us, every one of us, rest from all our wanderings and tribulations.
and trials. और सबसे पहली बात, परमेश्वर हमारी सारी समस्याओं से, सारे बेचैनीपन से हमें आराम देना चाहता है। Second, let us be prepared for rapture. और दूसरा हो के परमेश्वर के आगमन में उठाए जाने के लिए हम तैयारी करें। Third, let there be repentance in our lives. और तीसरा, हमारे जीवन के अंदर में प्रायश्चित का भाव होना चाहिए। Fourth is, let us remember that we are pilgrims and travelers or sojourners. और चौथा कि हम हमें अपने आप को याद रखें कि हम परदेशी हैं और यात्री हैं। The fifth is, let us restart things that are half done or undone. और पांचवा है कि जो चीजें हमने अधूरी छोड़ दी या बीच में छोड़ दी, उन्हें दोबारा से आरंभ करें। And then the sixth thing is, let us read and receive the word. और छठवां बिंदु है कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें और परमेश्वर से प्राप्त करें। And also the seventh thing, the last hour is, और आखिरी जो बिंदु है, if you read Jeremiah chapter 28 and verse 17. और यिर्मयाह 28 उसका 17 वचन। In the 7th month of that same year, Hananiah the prophet died. और उसी वचन के अनुसार हनन्याह उसी वर्ष के 7वें महीने में मर गया। Until now, all blessings. और देखिए, अब तक तो सब आशीष की बातें। Even the last thing is retribution or recompense, बदला चुकाना. और 7वां बिंदु जो है वो बदला चुकाना है। Okay, here it says, Hananiah the prophet died. और यहाँ लिखा हनन्याह भविष्यद्वक्ता मर गया। But who was Hananiah? लेकिन ये हनन्याह कौन है? He was a false prophet. और ये एक झूठा भविष्यद्वक्ता है। You read going home Jeremiah 28th chapter. और आप घर जाके यिर्मयाह 28 अध्याय को जरूर पढ़िएगा। This Hananiah was a false prophet and he was prophesying against the prophecies of Jeremiah. और ये एक झूठा भविष्यद्वक्ता है जो कि यिर्मयाह की भविष्यवाणियों के विरुद्ध में भविष्यवाणी करता था। And he was prophesying in the 5th month of that year. और वो उस वर्ष के 5वें महीने में भविष्यवाणी कर रहा था। And Jeremiah said, you will die. और यिर्मयाह ने कहा कि तू मर जाएगा। So in the 7th month, within 2 months, he died. और देखिए 7वें महीने में 2 महीने के अंदर में उसकी मृत्यु हो गई। Okay, so retribution or recompense. और देखिए लौटाया जाना, बदला किया जाना, ये 7वां बिंदु है। And I want to tell you that God is going to show his vengeance upon the people who are anti-God, anti-Christ. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो लोग मसीह विरोधी, परमेश्वर विरोधी हैं, परमेश्वर अपने क्रोध को उनके ऊपर में डालने पर We है। read in Galatians chapter 6 and verse 7. और गलाती 6 अध्याय उसके 7वें वचन में हम पढ़ते हैं, Do not be deceived, God is not mocked, for whatever a man sows, that he will also reap. और धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। And also we will read Ecclesiastes chapter 8 and verse 11. और सबोपदेशक उसका 8 अध्याय उसका 11 वचन हम पढ़ेंगे। It says, because the sentence against an evil work is not executed speedily, therefore the heart of the sons of men is fully set in them to do evil. बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, इस कारण मनुष्य का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। And you know, the Bible speaks about the day of vengeance of the Lord. और आप जानते हैं परमेश्वर के बदले के दिन के बारे में बाइबल बात करती है। And I personally believe that during this month, maybe these years, these times, God, who has been silent all these years, all these months on atrocities against Christians and against even Manipur, whatever has happened, Lord God is not going to be any more patient. और देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात पर विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर इस महीने, इन वर्षों के अंदर में अब तक चुप रहा था, लेकिन अब परमेश्वर, जो परमेश्वर विरोधी है, उनके प्रति अपने क्रोध को भड़काएगा। The Lord's
और परमेश्वर का बदला प्रकट होगा। We know as long as Jesus was there, he was forgiving everyone and he was blessing everyone. और जब तक हम जानते हैं यीशु मसीह यहाँ थे तो वो सभी को क्षमा कर रहे थे, सभी को आशीष दे रहे थे। But then after the death and the resurrection of Christ Jesus, और यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान जाने के बाद में and on the day of Pentecost when the Holy Spirit fell upon them, और पेंटिकोस के दिन में जब पवित्र आत्मा ने उन्हें भर दिया, God began to show his vengeance also along with his power. परमेश्वर अपनी सामर्थ के साथ साथ अपने बदले को भी दिखाने The लगा। Holy Spirit was healing the people, raising the dead to life. The Holy Spirit was performing mighty miracles through the hands of the apostles. और देखिए पवित्र आत्मा प्रेरितों के हाथों के द्वारा सामर्थी चिन्ह और चमत्कारों को कर रहा था, मुर्दों को जिंदा कर रहा था, लंगड़ों को चंगा कर रहा था। But when Ananias and Sapphira, they lied against the Holy Spirit, और जब अननिया सफेरा ने पवित्र आत्मा के विरुद्ध झूठ बोला, we know what happened. और हम जानते हैं कि उनके साथ में क्या घटना The घटी। Lord struck them both dead. और परमेश्वर ने दोनों को वहीं पर मार गिराया। We read about one Elymas, a sorcerer, in the book of Acts chapter 13. और प्रेरितों के काम 13वें अध्याय एक जादूगर जो एलिमास जिसका नाम है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। And there was one man by name Sergius Paulus, a proconsul, a great officer. और देखिए वहाँ पर एक व्यक्ति जिसका नाम सर्गीय पौलुस है जो एक अधिकारी है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। And he was hearing the word of God from Paul and Barnabas. और वो पौल और बरनबास से परमेश्वर के वचन को सुन रहा था। But this Elymas stopped him from hearing the word of God. लेकिन इस एलिमास ने परमेश्वर के वचन को सुनने से उसको रोका। And the Bible says Paul, or Saul, was filled with the Holy Spirit, and he told him, "You will not be able to see the light for some time." और देखिए पौलुस और साल जो पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर उसकी सामर्थ से भरकर उसने कहा एलिमास तेरी कड़वाहट के कारण तो कुछ समय के लिए अंधा हो The जाएगा। Bible says he became blind. और बाइबल कहती है कि वो अंधा हो गया। Herod killed James, one of the apostles of Jesus. और हेरोद ने यीशु मसीह के प्रेरितों में से एक प्रेरित याकूब को मरवा डाला। And then he wanted to kill Peter. और वो पतरस को भी मारना चाहता था। But then God sent an angel and released Peter. और परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा और पतरस को छुड़ा दिया। In the same chapter, the 12th chapter of Acts, और उसी अध्याय में प्रेरित 12वें अध्याय के अंदर में in the 23rd verse, we read that God sent an angel and struck him dead. और 23वें वचन में हम पढ़ते हैं परमेश्वर के दूत ने आकर उसको ऐसा मारा कि वो मर गया। Today, the Bible speaks about false apostles. और आज बाइबल झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में बात करता है। False apostles. और झूठे प्रेरितों के बारे में बात करता है। And false prophets. और भविष्यवक्ता झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में False teachers. और झूठे शिक्षकों के बारे And में even false brethren. और वो झूठे भाइयों के बारे में भी बात करता है। So God's retribution is going to come upon the people. और देखिए परमेश्वर का बदला लेना लोगों के ऊपर में उतरेगा। In the 7th month, Hananiah the prophet died. और 7वें महीने में हनन्याह जो भविष्यवक्ता है वो मर गया। So we are in the 7th month. और हम 7वें महीने में हैं। So may God move in our midst. और हो के परमेश्वर हमारे मध्य में मंडलाए। Let the vengeance of the Lord be manifested. और हो के परमेश्वर के बदला लेने का कार्य हमारे मध्य में प्रकट होने The पाए। fear of God grip the people. और परमेश्वर का भय लोगों को जकड़ ले। Maybe we will read one verse, that is Acts chapter 5 and verse 11. और प्रेरित उसके 5वां अध्याय उसके 11 वचन को हम It पढ़ेंगे। says, "A great fear came upon all the church and upon all who heard these things." और सारी कलीसिया पर और उन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। So even today, let that thing happen. Let there be great fear in the churches, fear of God,
fear of God, even the people about the things that God is doing. और होके परमेश्वर का भय लोगों के ऊपर में, कलीसिया के ऊपर में, और जो उसके वचनों को सुनते, बातों को सुनते, उनके ऊपर में पड़ने पाए। So may God bless this month for every one of us. और होके परमेश्वर हम सब के लिए इस महीने को आशीष करे। Let us all rest in our houses. और होके हम सब अपने घरों में आराम पाएं। Let all wanderings stop. और सारा भटकना समाप्त हो जाए। Let us all prepare ourselves for the rapture. और होके हम सब अपने आप को उठाए जाने के लिए तैयार करें। Let us repent from all our sins and iniquities. और होके हम अपने सारे अधर्म के काम और पापों से प्रायश्चित करें। Let us remember that we are pilgrims and we are sojourners. और होके हमेशा याद रखें हम परदेशी और यात्री हैं संसार Let us में। restart the things that have been undone. और उन चीजों को जो मध्य में बंद है उन्हें दोबारा से शुरू करें। Let us receive and read the word of God. और होके हम परमेश्वर के वचन को प्राप्त करें और उसे पढ़ें। The vengeance is of the Lord, so let us wait for the retribution of the Lord. और बदला लेना परमेश्वर का है, इसलिए हम इंतजार करें कि परमेश्वर अपने समय पर अपना बदला ले। Come, let us pray. और आइए हम प्रार्थना Father, we are करें। so grateful to you for the 7th month. और पिता हम इस 7वें महीने के लिए आपके बहुत धन्यवादी हैं। As we heard, help every one of us to receive this word and apply it in our lives. और परमेश्वर जैसे हमने पढ़ा है, आप हम सबकी सहायता करिए कि हम इसे ग्रहण करें, अपने जीवन में इसे इस्तेमाल करें। You have numbered the wanderings of us. परमेश्वर हमारे भटकने को आपने गिन लिया है। This month, let everyone's steps be stable and our houses be settled. And Lord, even settle people in their jobs, in their businesses, in their families. We pray in Jesus' name. परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे कदमों को रोके। हम प्रार्थना करते हैं कि आप लोगों के नौकरियों में, व्यापार में, उनके परिवारों में आप उन्हें स्थिर करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। Let this month be a prophetical month for people's blessings in Jesus' name. और हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से कि लोगों के जीवन के अंदर में भविष्य सूचक आशीषों का महीना होने पाए। Release your blessings. परमेश्वर अपनी आशीषों को आजाद The करे। vengeance of the Lord also be manifested, Lord. परमेश्वर आपका बदला लेने का भी प्रकटीकरण होने People पाए। are not having the fear of God. और परमेश्वर का भय लोगों के जीवन में नहीं है। Father, you move, we pray. और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आपसे। We give you the glory and the honor. परमेश्वर आप ही को आदर और महिमा देते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना को मांगते And हैं। everyone said, और सब मिलकर कहें Amen. आमीन।